how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to study the chapter The Making of Regional Cultures. Learning both regional languages and overview, regional paintings, regional music forms, regional literature, regional dance forms. आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Culture denotes the way a society leads life and develops its language, literature, religion, beliefs, customs, rituals, etc. and organizes various social, cultural activities and institutions. It also includes the development of art and architecture. Okay, देखिए कल्चर क्या करता है. कल्चर डिनोट करता है एक सोसाइटी को जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लिटरेचर, रिलीजन, बिलीव्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं. ओके, और डेवलपमेंट भी इंक्लूड करता है आर्ट और आर्किटेक्चर का. ओके, इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ रीजनल कल्चर्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर लॉन्ग पीरियड इन हिस्ट्री. Disintegration of the Turco-Afghan Empire in the 15th century caused the rise of several independent states in different parts of India. Okay, देखिए इंडिया में एक वेराइटी है रीजनल कल्चर्स की, ठीक है, जो डेवलप करती है पीरियड टू पीरियड. ओके, हिस्ट्री में पीरियड टू पीरियड वो डेवलप हुई है. ओके, अब यहाँ पे टर्को अफगान एम्पायर जो थी वो 15th सेंचुरी में जो आई थी उसके टाइम पे बहुत सारे सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स डेवलप हुए थे. ओके, इंडिया के पार्ट्स में. अगेन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल रूल इन द 18th सेंचुरी वाज फॉलोड बाय द राइज ऑफ द न्यू किंगडम्स इन महाराष्ट्र, पंजाब, राजपुताना, अवध, बंगाल, हैदराबाद, एटसेट्रा. Assam is the northeast was being ruled by the Ahoms. Under the new kingdoms in the independent states, regional cultures developed डिफरेंटली. ओके, देखिए अब जब यहाँ पे डिफरेंट तरीके के स्टेट्स जो थे वो डेवलप हो रहे थे, वहीं पे और भी किंगडम्स आए थे जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, राजपूताना, अवध, बंगाल, हैदराबाद. असम में हमने पढ़ा था पिछले कुछ चैप्टर्स में अहोम्स के बारे में, जो वहाँ के ट्राइब्स थे. तो असम को तो वही ट्राइब्स जो थे वो रूल कर रहे थे उस पर. ठीक है, काफ़ी सारे किंगडम्स जो थे वो इंडिपेंडेंट थे और डेवलप हो रहे थे इंडिपेंडेंटली. ओके, नाउ in the following sections, we will read about language, literature, painting, dance and music in India. आगे के sections में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. Regional languages and overview. Language is one of the most important elements of culture. Regional languages grew due to the support of local rulers. During the Mughal period, Persian was the official language. Hindi was developed between the 17th and 10th century and it was developed from Sanskrit. Okay, देखिए लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहली जो लैंग्वेज जो आई थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी. ओके, संस्कृत लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज डेवलप की गई थी. नाउ द फ्यूजन ऑफ हिंदी एंड पर्शियन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ उर्दू. मिराज उल आशिकिन by हजरत गैसुदाराज in the earliest work of उर्दू. ओके, देखिए जो उर्दू लैंग्वेज है वो हिंदी और आपकी जो पर्शियन भाषा थी उनके मिक्सचर से उर्दू बनी. ओके, नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिकग्नाइज्ड 22 मेजर लैंग्वेजेस, 13 of which find territorial identification in large political units. States. The major regional language include Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Punjabi, Assamese, Konkani, Manipuri and Kashmiri in the descending order of the number of speakers. Okay, देखिए 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो कि इसमें बताई गई हैं. टोटल सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखी गई हैं. ये आपकी मेन लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट स्टेट्स की. ओके, नाउ Indian languages and dialects are grouped into 4 language families: Indo-European, Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya and Assamese belong to the Indo-Aryan group. Number 2, Dravidian. The Dravidian language family includes 4 major languages, namely Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam. Each is mostly contained within a single state. Hindi, with its variants, is spoken in Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Bihar. Okay, see.
यहाँ पे हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, ओके। जो लैंग्वेजेस है 4 लैंग्वेज के जो ग्रुप्स है, फैमिलीज है एक तरीके से बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहला जो है इंडो यूरोपियन है, उसमें आता है बंगाली, मराठी, गुजराती, ओडिया, आसामीज, ओके। सेकंड वाले में आपका आ जाता है द्रविडियन लैंग्वेज इंक्लूड करती है कुछ लैंग्वेजेस को, जैसे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ओके। और इन सारे जो मोस्टली कंटेन स्टेट्स होते हैं वो साउथ में ये वाली लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, ओके। हिंदी जो है वो कुछ क्षेत्र में ही बोली जाती है, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, ओके। नाउ सीनो तिब्बतन, कश्मीरी, मणिपुरी एंड लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम बिलोंग टू द सीनो तिब्बतन एंड तिब्बतन बर्मन ग्रुप। फोर्थ, Astro-Asiatic. The Asiatic group is the Manthar of Kal and Munda speeches of the central and eastern India, Nikar base of Nicobar Islands, Santals of Bengal, Bihar and Odisha, is also the mother language of many other ट्राइबल लैंग्वेजेस, ओके। देखिए यहाँ से थर्ड से देख लेते हैं, सीनो तिब्बतन की बात की जा रही है। सीनो तिब्बतन में कश्मीरी, मणिपुरी टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं, ओके। सिक्किम जो है वो सीनो तिब्बतन में ही इंक्लूड होता है, उसी ग्रुप में आता है, ओके। एस्ट्रो एशियटिक में आपके आ जाते हैं काफ़ी एक ग्रुप होता है, एक मदर ऑफ काल एंड मुंडा स्पीचेस का, ओके। इसमें आपके सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के भाग जो हैं वो आ जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। वेरिएशंस इन लैंग्वेज आर रिलेटेड ऑफ to variations in culture including literature, art, architectures, mode of livelihood, patterns of social organization and religion. The range of regional cultural differences can be illustrated by the contrast between the Tamil speaking region, Tamil Nadu, and the Malayalam speaking region, Kerala. Both languages belong to the Dravidian family, but they are written in different scripts and have different literary heritages. Similarly, Bengal and Bihar, physically close and closely linked in commerce and administration over centuries, are sharply different in culture, religious orientation and social structure. Okay, देखिए वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस की जो वैरायटी होती है उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे आर्ट है, आर्किटेक्चर है, मोड्स ऑफ लाइवलीहुड है, पैटर्न है किस चीज़ का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। जो रेंज होती है रीजनल कल्चर की वो डिफरेंशिएट करती है किस चीज़ में, जैसे कि तमिल में क्या डिफरेंशिएशन है, उस टाइप की जो लैंग्वेजेस होती हैं एक एरिया की, तो क्या क्या डिफरेंशिएशन होती हैं उसमें, ओके। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है केरला में, तो ये साउथ इंडिया की हो गई, लेकिन दोनों डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे से, ओके। जो दोनों लैंग्वेजेस हैं ये दोनों द्रविडियन फैमिली की हैं, ओके। अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। इसी तरीके से बंगाल और बिहार में भी क्लोजली लिंक्ड कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन सेंचुरीज हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। रीजनल लिटरेचर, एवरी रीजन लैंग्वेज हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ लिटरेचर। हर रीजनल लैंग्वेज की एक रिच हेरिटेज होती है, ओके। Tamil literature. Among the South Indian languages of India, Tamil has the oldest literature. It begins around the 1st century AD. The ancient Tamil literature is known as the Sangam literature, about which you have read in the previous class. ओके, देखिए सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर जो है वो है तमिल लिटरेचर, ओके। ये शुरू हुई थी 1st सेंचुरी AD में। एंशंट तमिल लिटरेचर जो है उसको संगम लिटरेचर कहा जाता है, ओके। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। The twin epics Silappatikaram and Manimekalai are the Tirukural, a collection of aphorisms were produced between 4th and 6th century. Between the 6th and 9th century, Bhakti poetry was composed by Alvars and the Narayan saints. From the 12th to the 16th century, many philosophical treatises and anthologies of religious legends were composed, as well as the classic writings of the poet Kamban who translated Ramayana into Tamil. Okay, देखिए यहाँ से यहाँ पे बात हो रही है दो ट्विंस की, ओके, जिसकी बात है सिल्लाप्पकिडम और मणिमक्कलाई, ओके। ये दोनों जो हैं एक तरीके से कलेक्शन है एफोरिम्स की, जो कि प्रोड्यूस की गई थी 4th और 6th सेंचुरी दोनों में मिलके, ओके। इन दोनों के बीच में 6th और 19th सेंचुरी में भक्ति पोइट्री आई थी, जो कि कंपोज की गई थी अल्वर्स और नायानार्स के सेंट से, ओके। 12th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक बहुत सारे फिलोसफिकल ट्रीटीज जो थे उन्होंने काफ़ी सारे रिलीजियस लेजेंड्स कंपोज किए थे, ओके।
नाउ आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे रामायण को भी जो तमिल लैंग्वेज है उसमें कंपोज किया गया था, ओके, ट्रांसलेट किया गया था। मलयाली लिटरेचर, इन मलयालम द अर्लीस्ट एक्सटेंट लिटरेरी वर्क इन रामाचरितम, late 12th or early 13th century. Azuthachand's Adhyatma Ramayana, composed during the first half of the 16th century, is revered in the same way as Tulsi Ramayana in North India. Kunjan Nambiar 1705 to 1770 and Unnai Variyar produced mythological stories. ओके देखिए इस टाइम पे जो मलयाली लिटरेचर है उनकी mythological stories भी बनाई गई थी, ओके, उस टाइम पे 1705 से लेके 1770 तक, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ लिटरेचर, द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स इन कन्नड़ लिटरेचर डेट फ्रॉम द 6th century AD. द क्लासिकल ट्रेडिशंस बिगिंस विद द कवि राजा मरगा of Nirupatunga 9th century. In the 12th century Vachana, a new form of short blank verse poetry arose. Telugu literature. Telugu literature began to be composed in the 10th or 11th century. It is mainly poetry and epics. It flourished in the 16th century under the विजयनगरा एम्पायर। ओके देखिए तेलुगु लिटरेचर जो है ये शुरू हुई थी 10th और 11th सेंचुरी में और ये मेनली पोइटिक और एपिक्स है, ओके, और ये विजयनगरा एम्पायर में स्टार्ट हुई थी, फ्लोरिश की गई थी, ओके। एसमीज लिटरेचर, द अर्लीस्ट टेक्स्ट इन एसमीज इज द प्रहलाद चरित्र ऑफ मीना सरस्वती 13th century. The first great Assamese poet was Kavi Raja Madhava Kandali, 14th century, who translated the Sanskrit Ramayana and wrote Devajit and narrative of the god Krishna. ओके देखिए यहाँ पे जो अर्लीस्ट टेक्स्ट था एसमीज का वो था प्रहलाद चरित्र, ओके, और जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट एसमीज पोइट थे उनका नाम था कविराजा माधवा कांडली, ओके। नाउ द मोस्ट फेमस एसमीज पोइट ऑफ द 16th century was Shankara Deva, who inspired poets like Madhava Deva to write lyrics of great beauty. Buranjis are chronicles written in the prose tradition brought to Assam by the Ahoms of Burma. Okay, see, यहाँ पे सबसे फेमस पोइट की बात की गई है 16th सेंचुरी जिनका नाम था शंकर देवा, ओके। उन्होंने इंस्पायर किया था बहुत सारे पोइट्स को पोइट्री लिखने के लिए, जिनका नाम था, उनमें से एक थे जिनका नाम था माधवा देवा, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिरिक्स लिखी थी, ओके। नाउ ओरिया लिटरेचर, Mandala Panji text, the Chronicles of the Jagannath Temple in Puri, is the earliest prose work in Oriya, 12th century AD. During the 14th century, the anonymous Kalasa Chautisha and the famous Chandi Purana of Sarala Das were composed. The best known medieval Oriya poet was Jagannath Das in the 16th century, who produced a version of Sanskrit Bhagwat Puran. ओके देखिए उस टाइम के जो सबसे फेमस मेडिवल पोइट थे जिनका नाम क्या था, ओरिया के जो पोइट थे उनका नाम था जगन्नाथ दास 16th सेंचुरी के, और उन्होंने एक वर्जन भी जो है वो प्रोड्यूस किया था संस्कृत भगवत पुराण का, ओके। नाउ मराठी लिटरेचर, अलॉन्ग विद बंगाली, मराठी इज द ओल्डेस्ट ऑफ रीजनल लिटरेचर डेटिंग फ्रॉम अबाउट 1000 AD. In the 13th century, two Brahmanical sects, the Mahanubhava and the Varakari Panth, put forth vast quantities of literature. The latter was associated with bhakti. It was out of the tradition of the Janeshwara, Namdeva, Eknath emerged as great names of early Marathi literature. Among the Bhakti poets of Maharashtra, the most famous is Tukaram, 16th century. A unique contribution of the Marathi is the tradition of Povadas, heroic stories popular among the martial people during the time of the Shivaji. Okay, इनके टाइम के जो फेमस जो लिटरेचर थे, जो पोइट थे, उनका नाम क्या था? तुकाराम, ओके, 16th सेंचुरी में, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने मराठी ट्रेडिशन में, ओके।
Ample SST Book 7 Chapter 5. Hello students, how are you all? Today we are going to study water, learning port, water cycle, distribution of water bodies, circulation of ocean water. Water is very significant resource of the earth's surface. It is unique feature of our planet. It is essential for human beings, plants and animals. In fact, water लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. ओके देखिए वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हम प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एवरी लिविंग बींग के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके वाटर के बिना लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती. ओके अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट एट 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कॉल्ड बाय by covered 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 by covered
by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered by covered
अमर है। क्यों? क्योंकि वे विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। ऐसे थे न्यूटन, जिन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में यानी कि बाल्यावस्था से ही परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर सिद्ध कर दिखाया कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। चाहे आर्थिक अभाव हो, परेशानियां हो, जीवन में पैसों का अभाव हो, लेकिन अगर अपने लक्ष्य